Well, there's the full image of Ram Lalla that's been accessed exclusively by Times Now. Now, this is shortly before Ram Lalla was taken to the Ram Mandir and placed inside the Garbhagriha. This is the full image, as will, of course, be visible on the day of the Pran Pratishtha and be unveiled then. This is the entire image that's been sculpted by Arun Yogiraj, who was tasked with this responsibility of coming up and sculpting an idol that will be placed in the Janmasthan of Lord Ram. And there you have it on your screen. Shivani, take us through the latest visual that you've now accessed of the entire image, the entire sculpted idol of Ram Lalla, which will be placed inside the Garbhagriha. Siddharth, this is the new image that shows complete idol, the 51-inch tall idol that has been sculpted by Arun Yogiraj specially, which will be Pran Pratishthit in the Ram Mandir's Garbhagriha. And let's also keep telling our viewers that whatever idol images we are showing them, the full idol images, they were of the time when this idol was kept inside the Vivek Srishti. That was the high security zone where the idol was placed. And after the consecration ceremony started on 16th, various puja rituals, Vedic anushtans took place, and then Bhagwan Ram's idol was covered, his eyes were covered, and only on 17th, that was Wednesday, for the first time it was moved inside the premises, the second day of the consecration, when in a procession we all saw a big carcade in which there was a truck, and inside the truck was this idol, and then from Vivek Srishti it was moved towards the temple premises, and then it was kept in the temple premises. And yesterday late evening, this idol was kept on the pedestal on which it will be installed. The Pran Pratishtha will take place on 22nd, and till now also the face, the eyes are covered of the idol. These pictures, which are complete, which are giving the complete view of this idol, were of that time when the anushtans did not start. They were kept inside the Vivek Srishti, but certainly it is thrilling to see the first images of the full face of Bhagwan Ram, because yesterday we had seen the complete idol except the face. Today early morning we saw a little bit of his face, because the image we got that time had a blindfold on the eyes. But now these fresh images are actually so electrifying, because they are reverberating the devotion of lakhs of Hindus, lakhs of Ram Bhakts across the globe. Everybody was waiting anxiously to see the first pictures of these images, which Times Now has now accessed for the viewers, because everybody wanted to know how this particular Ram Lalla idol looks like. And we had all the details that were given out by the trust, that this is a black stone idol. It has been sculpted by Arun Yogiraj, and it is 51-inch tall. It is of a 5-year-old child. But how exactly it looks like, this is the first picture of Bhagwan Ram that is now accessed by Times Now. And these pictures are of the time when this idol was kept inside the Vivek Srishti, the high security zone, before the anushtans had started. And since 16th of January, every day we are seeing a different consecration ceremony that's taking place, whereas the Adivasas are happening, where this particular idol is being immersed. Sure, Shivani, I just need to interrupt you for a moment. We have the Vishwa Hindu Parishad's Mr. Vinod Bansal joining us. Good afternoon to you, sir. आप राम लल्ला को देख रहे हैं, क्या आपका पहला राय क्या है ये देखने के बाद? देखिए, बड़ा सुंदर, भव्य और दिव्य है, और सदियों से जिनकी प्रतीक्षा थी, अभी चाहे अधूरे दर्शन हुए हैं जी, पूर्ण दर्शन भी होंगे। रामलला शीघ्र प्राण प्रतिष्ठा के बाद में अपने मूल गर्भगृह में विराजमान भी होंगे। अभी अपने गर्भगृह की तरफ पहुंचे हैं जी, और बड़ा हर्ष का विषय है। संपूर्ण देश इस बात को जानता है कि अभी तो 2 दिन शेष हैं, लेकिन वो 2 दिन जो है 2 सदियों समान लग रहे हैं लोगों को। अभी हम जो है ना, बड़े बेकरारी के साथ इंतजार कर रहे हैं। वो एक एक पल जो है, एक एक दिन जो है, हमें एक एक सदियों की तरह बीत रहा है। देशवासी उस अप्रतिम क्षण की प्रतीक्षा में है कि कब वो 22 जनवरी के 12 बजेंगे, 12:30, 20 बजेंगे, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उनका भव्य और दिव्य स्वरूप हमारे सम्मुख होगा। संपूर्ण विश्व जो है एक साथ गुंजायमान होगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारों से। आप देखिए कि ये जो भव्य दिव्य तस्वीर आई है, वो
एक अनुपम है, अद्वितीय है। अभी तो बहुत स्पष्ट नहीं है, चूंकि ट्रस्ट ने भी पूरी तरह से उसको जारी नहीं किया है जी। आप देखिए कि ये जो तस्वीर है वो मतलब एक मनोहारी तस्वीर है। अभी जब रामलला स्वयं वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होकर विराजमान होंगे तब उसकी छटा अलग होगी। बिल्कुल। उस समय जो है वो दर्शन दिव्य होंगे। सभी लोग अभिभूत हैं इस एक प्रारंभिक एक तरह ये कहना चाहिए कि एक ग्लिम्स को देख करके जी। तो लेकिन ये कि एक हर्ष का विषय है। अभी सबको थोड़ा सा धीरज रखना होगा। बिल्कुल। थोड़ी सी प्रतीक्षा और करनी पड़ेगी। जी। 2 दिन बीच में हैं। मुझे लगता है कि फिर उसके बाद में ये वो भव्य दिव्य और अनुपम क्षण भी आने वाला है। बिल्कुल। जो 500 साल बाद प्रभु राम अपने स्वयं की कुटीर में विराजमान होंगे भव्यता दिव्यता के साथ और हम सब के ऊपर कृपा बरसाए रखेंगे। देश धर्म संस्कृति की रक्षा में जुटे हुए जितने भी अनगिनत प्राणी हैं और जीव चराचर हैं वो सब जो है उनसे उनका कृपा पात्र बनेंगे और सब लोग मिलकर के अयोध्या की ओर आएंगे, दर्शन करेंगे और वो उनके कृपा के भागी बनेंगे। ये जो दिव्य क्षण हैं वो बहुत ही मतलब मंगलकारी हैं, लोगों को पीड़ा हरने वाले हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपके चैनल को, जिनके सुधी दर्शक अच्छी तरह से इन सब विषयों को देख पा रहे हैं, इनके दिव्य दर्शन भी कर पा रहे हैं। वीएचपी की बड़ी भूमिका रही है सर इस राम जन्मभूमि आंदोलन में और हम सब रुके हैं 22 तारीख के लिए जब प्राण प्रतिष्ठा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आचार्य विक्रमादित्य जी इज ऑल्सो विद अस। आचार्य जी, पहला झलक मिल रहा है हमें रामलला का, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आचार्य विक्रमादित्य जी, अगर हमारी आवाज आपको आ रही है, रामलला का पहला झलक हमें मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? हेलो जी सर। बहुत सुंदर योग बन रहा है कि जिस प्रकार से ये दर्शन सामने दिखाई दे रहे हैं वो मन को आनंदित करने आह्लादित कर रहे हैं और पीढ़ियों का शरीर पूरा हो गया कि इस दृश्य को देखने के लिए। और जो लोग लगातार संघर्ष किए पिछले 500 वर्षों से, लगातार पूरे परिवारों का संघर्ष चल रहा था, पीढ़ियों का संघर्ष चल रहा था और आज सुंदर दृश्य जो देखने को मिल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से मन को आनंदित आह्लादित कर रहे हैं। भगवान की स्तुति जिस प्रकार से की जाती है वो मन से वो स्तुति निकल रही है जिस प्रकार से, और आज सुंदर अवसर है, हम सबको उस दृश्य का आनंद लेना चाहिए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरणम भव भय दारुणम, जिस प्रकार से मंत्र है ना, वो भगवान के सुंदर चरित्र को देख के, सुंदर दृश्य को देखकर मन आनंदित है। और मैं कहूंगा कि मानव ही नहीं, इस वक्त तो देवता भी इस दृश्य को देखने के लिए लायक होते हैं। जब भगवान का जन्म होता है तो कहा जाता है महेश स्वयं उपस्थित हो जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। और आज जिस प्रकार से इस संस्कृति ने, इस भारत के संस्कृति के स्वाभिमान के निर्माण का सुंदर कार्य किया जा रहा है, पूरा विश्व, पूरा भारत, पूरा सनातन मंडल आनंद से विभोर हो रहा है। और सबके अंदर एक सुंदर, अगर आप ही चैनल का देखें तो पूरा भारत इस वक्त राममय हो गया है। इससे सुंदर दृश्य कहाँ होगा इस कलिकाल में, इस कलयुग के काल में, जब कहा जाता है कि लोग राम का नाम नहीं लेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, लेकिन इस वक्त समस्त लोग कुछ और नहीं देखना चाहते, राम का ही दर्शन करना चाहते हैं, भगवान का ही दर्शन करना चाहते हैं। और वो आपके इन समस्त चैनलों के माध्यम से सुंदर दृश्य जो जा नहीं पा रहे हैं, दृश्य चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। सुंदर सौभाग्य का योग बन रहा है, बड़ा आनंदित का योग है। आचार्य जी, एक और सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि जो रामलला को हम देख रहे हैं इसमें एक स्वर्ण बो एंड एरो या धनुष बाण भी है, वो हमें कल दिखाई नहीं दिया था, लेकिन आज एक स्वर्ण धनुष बाण भी दिखाई दे रहा है उनके हाथों में। पूरे इस दृश्य के बारे में हमें जरा बताइए, आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, भगवान के जो शिवग्रह है, दो छोटे शिवग्रह भगवान के दिखते हैं, भगवान विष्णु के शिवग्रहों में। एक तो भगवान कृष्ण का शिवग्रह उनके हाथ में होता है और भगवान राम का जो शिवग्रह होता है उनके हाथ में धनुष हमेशा, परचाप जो धारण हमेशा करते हैं भगवान। तो यही बेसिक भेद है भगवान कृष्ण में और कृष्ण जी में। दोनों सुंदर बाल रूप में है और ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है धनुष, भगवान राम के हाथ में हमेशा धनुष बाण
सुसज्जित रहता ही रहता है। तो ये स्वर्णिम ध्वज जो है वो साक्षात भगवान के हाथ में जो है वो इसी बात का चिन्ह है कि वो भगवान राम का श्री विग्रह है। और यदि मोदक हाथ में होता है, मक्खन हाथ में होता है, तो वो नंद गोपाल का चिन्ह होता है। तो ये भगवान के हाथ में जो धनुष है, सरचाप हरण जो भगवान करते हैं, वो भगवान राम का ही प्रतीक है। और वो उनके हाथ में सुंदर तरह से दर्शन जो हो रहा है, बड़ा आनंद का स्वरूप सामने आया है। वास्तविक स्वरूप तो 1-2 दिन लगेंगे आने के लिए, लेकिन जो भी अभी दृश्य सामने आ रहे हैं वो बड़ा संपूर्ण रूप से, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा कि जिसको आनंद नहीं प्राप्त हो रहा होगा। संपूर्ण रूप से पूरे देश की जनता, सनातन पद्धति के जितने भी हैं, मैं कह रहा हूँ व्यक्ति भी इस वक्त जो धर्म का विरोध करते हैं वो भी इस दृश्य को देखकर आनंदित प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि राम सबके हैं। क्या पक्ष क्या बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य विक्रमादित्य जी कि हमने आपको हमने इतने विस्तार से आपने हमें एक्सप्लेन किया इस दृश्य के बारे में।